It's a great honor to welcome you all here. I am so delighted that even being a Sunday and the holiday time, you are gathering. Your gathering is so enormous. It's really pleasing to us, and I am heartily thankful to each and every one of the participants, speakers, honorable guests, ladies and gentlemen. Thank you, Rashi, once again for the inspiring welcome. As we just heard, technologies like artificial intelligence, quantum computing, blockchain, and cyber security are not simply tools anymore. They are redefining society, economy, and governance in profound ways. I would like to build upon that thought and share how India can not only participate in this transformation but can lead it. We often say that India's strength lies in the people, and nowhere is this clearer than in the field of emerging technologies. Our nation's vibrant young talent, combined with a rapidly evolving digital infrastructure, gives us a unique position in the global landscape. As I reflect on this convergence of technologies, I am reminded of a belief I hold strongly, where AI converges with quantum computing, blockchain, cyber security. India emerges as a hub of limitless possibilities. There are three priorities I see for India's journey in the emerging technology. First, security and trust. In a world of interconnected systems, trust is the currency. Cyber security is not an afterthought, it is the foundation that protects innovation. Intelligence and adaptability is the second point. Artificial intelligence and quantum are not just about speed or scale, but about making our systems more adaptive, resilient, and future ready. Inclusivity and impact. Technology must reach every village, every classroom, every enterprise. True progress is not when the few have access to advanced tools, but when the many benefit from it. I see a very large gathering of students, and youths are the future, youths are the power of the nation. I think it is well said. If a nation doesn't have a youth, it doesn't have any hope. And if a nation doesn't have any hope, it has got no future. For students and professionals here today, you are the builders of this future. Acquire skills across disciplines, combine coding with design, AI with ethics, blockchain with governance. Seek global knowledge, but anchor it in India's needs. And above all, let your innovations be guided by values, responsibility, inclusivity, and sustainability. Because the future will not only be shaped by how powerful our technologies are, but by how wisely we use them. No single institution can achieve this transformation alone. This is why gatherings like today are so important, as they bring together academia, industry, government, and startups under one roof. The hackathon, the networking sessions, the Q&A forums, these are not just events on the program. They are the spaces where ideas are born, where partnerships are formed, and where the seeds of tomorrow's breakthroughs are sown. Friends, as India approaches its 100th year of independence, we carry the responsibility of shaping not only our nation's destiny, but also contributing to the world's technological progress. If we remain committed to innovation, inclusivity, and trust, I am confident that India will not just adapt to the emerging technology revolution, we will lead it. Let us use today not only to learn, but to connect, to challenge ourselves, and to envision the India of tomorrow. टेक्नोलॉजी को मैं अपनी इस स्पीच में भी लिखा हुआ है कि आगे
मैं अपने मन से भी मुझे बोलने का कुछ मौका दिया है, और उसमें मेरे प्रिय टीम ने ये भी लिखा है कि कुछ कविताएं भी, पोइट्री भी सुना के मोटिवेशन करें, तो शायद ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए अब इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी पे आ जाता हूँ, अगर आप लोग अनुमति दें तो। उसमें मेरा मानना ये है कि टेक्नोलॉजी तो दिमाग से होती है, मस्तिष्क से होती है, लेकिन कम्युनिकेशन दिल से होता है। और उसमें पोइट्री इन माय ओपिनियन इज सो इम्पोर्टेंट कि वो शायद 5G और 6G से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। परिचय में इन्होंने इतना बड़ा बड़ा बोला, लेकिन उसमें मैं सिर्फ उसे किसी कवि के शब्दों में 2-4 पंक्तियों में ही सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जगह जगह काम करना पड़ता है। तो उसमें किसी उर्दू पोइट ने ठीक ही कहा है कि कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पे, कभी फर्श पे, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। मुझे बहुत खुशी है, आज मेरे बहुत सारे मित्र एक जगह आके सम्मिलित हुए हैं और मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वो अपने बिजी शेड्यूल से दे कुड टेक आउट टाइम, और इट वाज सो डिफ़िकल्ट बिकॉज आज संडे का भी दिन है और दशहरा फेस्टिवल, फिर दिवाली फेस्टिवल। तो एक तो सबसे पहले विजयादशमी की बधाई, दीपावली की एडवांस में आप लोगों को, आपके परिवार से बहुत बहुत बधाई। अभी यहाँ पर आए हुए छात्रों में IIT दिल्ली के भी छात्र हैं और भी विभिन्न संस्थाओं से जो छात्र आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और आज का इवेंट मैं युवा शक्ति को समर्पित करना चाहूँगा, मैं उसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, क्योंकि आपका एल्मा आज भी मैं देखता हूँ। मैं एक IIT BHU के मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने 40 साल बाद अपने इंस्टीट्यूट पे कविता लिखी है। आप लोग भी अभी जब पास आउट करके निकलेंगे, टाइम रन्स वेरी फास्ट। मुझे 4 दशक पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी और टाइम पता ही नहीं पड़ा। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, हर पल का उपयोग करें और अपनी यादें जरूर लें अपने एल्मा की। मेरे ख्याल से आज यहाँ पे IGDTUW की छात्राएं होंगी, NCU के स्टूडेंट्स हैं, JIIT के होंगे, काइट के हैं, JSS के हैं। तो इन सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आई एम श्योर आज आपने संडे आकर यहाँ पे अपना समय लगाया है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको बहुत इससे लाभ पहुँचने वाला है, ऐसा मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। बड़े ही कैपेबल, योग्य स्पीकर्स हैं और सभी अपनी अपनी फील्ड के दिग्गज हैं। ये महाकुंभ तो कहें या इसे कुंभ कह लीजिए, ये बड़ी मुश्किल से होता है। इसमें सारे ये टेक्नोलॉजी कुंभ है जिसको आप विटनेस कर रहे हैं। एल्मा के लिए तो ये रहता है कि उसकी यादें जीवन भर रहती हैं, और उसमें भी किसी कवि के शब्दों में कि बिछुड़ के तुझसे न उम्र भर किसी से मिले, कोई मिल भी गया तो बेखुदी से मिले, खुशी के साथ मिले या नाखुदी से मिले, बस तेरा ही ख्याल आया जब भी हम किसी से मिले। बाकी मित्रों के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि दुआओं का काफिला चलता है मेरे साथ, मुकद्दर से कह दो मैं अकेला नहीं चलता। छात्रों को, युवा शक्ति को मेरा यही संदेश रहेगा कि अपने हौसले बहुत ऊंचे रखें, चरित्र बहुत ऊंचा रखें, और फिर सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। और मैं कामना करता हूं कि आज इस समारोह में इतनी हस्तियां, ये स्टूडेंट्स आज इसे आकर देखे हैं, इसको सम्मिलित हुए हैं, वो यहीं से बड़े बड़े सुंदर पिचाई और बड़े बड़े एमिनेंट इंडियन IT पीपल, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एक्सपर्ट्स कैन कम अप, ऐसी मेरी कामना है। और उन बच्चों के लिए तो मेरे को यही कहना होगा कि आप हौसले ऊंचे रखते हुए अपने को पूरी तरह से मेहनत के साथ काम में जुटाएं। भारत सरकार इस पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है और सारी युवा शक्ति को पूरा एनर्जाइज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी फैसिलिटीज, सभी योजनाएं ला रही है। ऐसा आप लोग देखते ही हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये होना चाहिए
कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को मेहनत में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, पर हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। एक शब्द में मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि साहस से बढ़कर कोई सगा नहीं, वही हारा जो ठीक से लड़ा नहीं। और ये कहा जाता है जमाना बदल रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से जमाना तो बदल ही रहा है, लेकिन भारत जरूर बदल रहा है। भारत के हर क्षेत्र में, हर सेगमेंट में, हर युवा पीढ़ी में एक अजीब उत्साह है। और जो 2047 का अमृतकाल का सपना है या विकसित भारत का सपना है, वो मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ मैं विजन आईएएस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस मंच से उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया, और उसमें अजय सिंह जी की प्रशंसा तो आप सभी ने सुनी है। उन्होंने उनकी जो लगन है, जो उनका जज्बा है, उसको मेरा सलाम, और मैं उसके लिए उन्हें एक बार पुनः बधाई देना चाहूँगा। और उसके साथ ही मैं उनकी टीम का बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनकी टीम का जो डेडिकेशन है, जो समर्पण भाव है, जो उनकी नॉलेज है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैंने इंडस्ट्री में 4 दशकों से काम किया, लेकिन यहाँ की टीम से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये मैं हृदय से बता रहा हूँ। उस सब के लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। बाकी समय तेज़ी से बदल रहा है, डिजिटल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का विकास तेज़ी से हो रहा है, और उसमें मेरे को ये जिम्मेदारी गेस्ट ऑफ ऑनर की बना के मैं थोड़ा डर भी लगने लगा था कि यार लगता है मेरा प्लेइंग कैरियर ख़त्म हो गया है, वो मार्गदर्शक मंडल वाला मुझे शुरू कर दिया है। तो इस सभी के साथ मैं एक बार पुनः सभी को बधाई देना चाहूँगा, और समय सीमाओं को, बातें तो बहुत करनी है, लेकिन समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आपके सहयोग से, और एक बार हम सभी मिल के इसे आगे करते हैं। विजन आईएएस आपकी हैंड होल्डिंग करने को तैयार है। आप लोग आगे आएँ और आगे बढ़ के इसको सफल बनाएं। और मैं देखना चाहूँगा इनकी टीम में, विजन आईएएस में, हमारी टीम में बहुत कैपेबल लोग हैं। आप भी उसमें जुड़ें, आपका स्वागत है। और इस आयोजन को सफल बनाने में आज मैं पूरे दिन में इसमें आप पूरी तरह से जुट के, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।